Hello everyone, welcome to MBA Karo. If you are preparing for MyCat, this is a video which you must watch to understand how MyCat QA questions are asked. We will be coming up with divergent and convergent thinking as well कि उसमें किस तरह के question पूछे जाते हैं. So I've been appearing on MyCat for the past few years and I happen to have collected those questions. So the ones which I could attempt in the examination, I could recall. So in this video, we will see first we will see this year's MyCat 1 paper, uh, some of the questions which were asked in MyCat 1 this year, plus some more past year papers. We will have a series of lectures in which we will discuss for the past few years. Okay, so this year the level was slightly easier as compared to 2024 2023 राइट. तब माइकेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था. साल थोड़ा सा लेवल डिप हुआ है एंड दिस टाइम दे इंट्रोड्यूस टीटा क्वेश्चंस आल्सो. Right, if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. And if you are preparing for MyCat and are looking for daily descriptive tasks, you can join our WhatsApp community. There we share daily descriptive questions for you to prepare for these question types. And if you are looking for MyCat mocks on the latest pattern closest to the examination, you can check our mocks. We have mocks for the aptitude section, which include percentile rankings as well. We have video solutions for QADI so that like you know the best approach to solving such questions. And there is one free mock also available. You can check it. The link given in the description below. Okay, so these are questions of MyCat 1, right? MyCat 1 2025. ये 2025 का ये क्वेश्चन है. MyCat 1 जो हुआ था अभी दिसंबर में, तो उसका ये क्वेश्चन है. So let's see these questions. So I'll tell you which all are MyCat 1 of 2025. Then we will have some questions of 2024 as well. And in the subsequent classes, we shall have PYPs, like not of this year but previous years. A person purchased two shoes at the same cost and also set the same mark price for them. Sold the first shoe after giving successive discounts of 20%, 10%, and rupees 183 and made a profit of 10% on it. He sold the second shoe at a discount of 35%. If the cost price of each shoe is 750, what is the profit made on the second shoe? There are two shoes, shoes 1 and shoe 2. Cost is 750 and 750 each. Now we are given for that first shoe, he made a profit of 10%. Right, so profit is 75 rupees. That means selling price is going to be 825. Now this is after three discounts, right? First is 20% discount, second is 10% discount, and then rupees 183. Okay? So like there is mark price, discounted 1, discounted 2, and discounted 3. That is the final selling price. So this is the selling price which is 825. तो यहाँ से यहाँ तक इसका 20% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, and then you have 183 rupees reduction, right? So selling price is 825. So after second discount, to add 825, this is 1008 rupees. And successive discount का formula होता है a plus b minus ab by 100. So you can directly use it. So actual discount is 20 plus 10 minus 20 into 10 by 100, which gives us 28% discount. तो यहाँ से यहाँ तक 28% डिस्काउंट है. इन दोनों का मार्क प्राइस सेम है. So this is 72% of mark price is equal to 1008. And in second case, the second shoe is sold at a discount of 35%. इसका जो डिस्काउंट है वो 35% है. So that means you have to sell at 65% of mark price. That you need to find how much is it. So 72% is 1008. If you divide by this, you will get, like if you divide 1008 by 72, you will get 14 as the result. Okay, so that means mark price is equal to 1400. तो ये 65% मार्क प्राइस में सेल कर रहा है, इसका दोनों का मार्क प्राइस 1400 आ जाएगा. इसमें 35% डिस्काउंट करना है, तो 65% निकाल दो. 65 by 100 ऑफ
1400, or basically you need to do 65 into 14. So 14 into 5 is 70, 7 carries, 84 plus 7 is 910. The selling price आ जाएगा 910 and this is 750, तो कितना डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 160. So that was a question asked this year. अगर आपने प्रॉफिट लॉस किया हुआ है, आपको पता है कि किस चीज को कैसे रिलेट करते हैं, यू कुड हैव बीन एबल टू डू इट. सो इट वाज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी भी आए थे. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टीचर हैज ट्विंस एज स्टूडेंट्स. ये टीटा क्वेश्चन था. So for the first time they introduced TETA questions in the examination. लास्ट ईयर तक सारे MCQs आते थे और लास्ट ईयर तक 8 ऑप्शन भी होते थे. There are twins and the combined age of the teacher and the students is 94 years, right? And then it says that 10 years ago the teacher was 6 times as old as each of the twins. And then we need to tell after how many years from now will the teacher be twice the age of each of the twins. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक टीचर के दो ट्विन स्टूडेंट्स हैं और 10 years ago, तो 10 ईयर अगो ले लेते हैं. 10 ईयर ले लो टीचर एंड स्टूडेंट. ठीक है, सो टीचर की एज कितनी है 6x ले लेते हैं, स्टूडेंट की x ले लेते हैं. सो इट इज सेइंग दैट 6 टाइम्स एज ओल्ड एज ईच ऑफ द ट्विन्स. तो आज कितनी एज हो जाएगी, टुडे देयर एजेस विल बी, इसमें 10 इयर्स पहले की बात है तो 6x plus 10 हो जाएगा और स्टूडेंट की एज हो जाएगी x plus 10. नाउ दीज आर ट्विन्स, सो दैट मींस देयर आर टू स्टूडेंट्स और क्या दिया है, combined age of all three is 94 years, the teacher and students. तो इनकी combined age कितनी हो जाएगी 6x plus 10 plus 2 times of x plus 10, that equals to 94 years, right? So you will get 8x plus 30 equals to 94 और 8x is equal to 64 और x is equal to, ठीक है, x 8 हो गया. तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं. यहाँ पे 48 ईयर्स थी, ये 8 हो गई और ये आज की डेट में 58 है और यहाँ पे 18 है. Now it is asking after how many years will the teacher be twice the age of each of the twins. तो ये दोनों twins की एज 80 सेम ही एज होगी. ठीक है, so suppose it happens after n years. So teacher's age will be 58 plus n, this will be 18 plus n. So 58 plus n is 2 times of 18 plus, we can say that it is 2n plus 36. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे you will get n is equal to 22. So the answer is 22 years. A fairly easy question, just इसमें ध्यान रखना है ट्विंस हैं तो जब यहाँ पे टोटल एज दी है यहाँ पे आपको इसको 2 टाइम्स ऐड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन था ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, CD equals to 8 centimeter and AD equal to 10 centimeter and angle ABC is 90 degree. What is the in radius of the circle inscribed in ABCD? Now it's a typical geometry question. के लिए आपको ज्योमेट्री आनी जरूरी है. ठीक है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं. AB is 8 and we are given that ABC is 90 degree. तो ये AB है और ABC यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है. तो AB is 8, BC is 6 and then we have CD is equal to 8 and AD is equal to 10. तो ये AD हो गया which is 10 and CD is equal to, right? इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉन है और हमें इसका इन रेडियस निकालना है. अब देखो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था. ठीक है, जिसको अच्छे से ज्योमेट्री कॉन्सेप्चुअली आती है वही कर सकता था, प्लस थोड़ी सी टेक्निक भी लगानी है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ट्राइंगल के लिए भी अप्लाई होता है. एरिया इज इक्वल टू एस इंटू आर, राइट, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर and r is the in radius. ठीक है, अब देखो हमें इन रेडियस निकालना है. तो सेमी पेरीमीटर तो हमें पता है बिकॉज वी नो द साइड लेंथ्स. एरिया कैसे निकालेंगे, दैट वाज द चैलेंज. अगर आप एरिया निकाल दोगे
सो यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर इट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, पर क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालोगे, राइट? सो लाइक दैट इज व्हाट इज, अच्छा दिस इज नॉट 90, ठीक है, ये नॉट नेसेसरी 90, ये ऐसा है, ये 90 डिग्री है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि 90 डिग्री होगा, ये बना ऐसा है, बट हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे हो, लेट अस से थोड़ा सा ऐसे बना होगा, कैसे भी हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरली 90, तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो दिस इज नॉट 90 डिग्री, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, ये हो सकता है लेस देन 90 भी हो सकता है। अब इस सिचुएशन में आप एरिया कैसे निकालोगे? नाउ व्हाट वी नो इज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज लाइक दिस, इसीलिए पर्पसली यहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल दिया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 10 हो गई। इसका एरिया आप निकाल सकते हो इजीली, 8 6, like half of 6 into 8, that is 24। तो ABC का एरिया हमारा आ गया 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ACD, ACD का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, 10 10 and 8, we will use Heron's formula to find the area। now triangle, area of triangle ACD, ACD का एरिया कितना हो जाएगा, we will first find semi perimeter for this, which is equal to 10 plus 10 plus 8 by 2, which is 14। ये सेमी पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल के पर्सपेक्टिव है, ये हम ट्राइंगल के लिए निकाल रहे हैं। नाउ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझसे एग्जाम में नहीं हुआ था, मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस नोट कर लिए थे, एंड लेटर ऑन लाइक आई ट्राइड सॉल्विंग इट एंड फिगर्ड आउट कि ये ऐसे करना चाहिए था। so this is equal to s is 14, s minus a side is 10, so 4 4 and 6। ठीक है, अच्छा अब 4 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया। ठीक है, 14 इंटू 6 84 होगा, तो उसमें से 4 अगेन बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 6 इज 84, 84 इज 21 इंटू 4, सो 4 का स्क्वायर रूट आप बाहर निकाल लोगे, दैट इज 2, एंड इट विल बी रूट 21। तो ये आ गया आपका एरिया 8 रूट 21। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो आपको याद होगा कि रूट 21 की वैल्यू भी गिवन थी शायद क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में दिया था रूट 21 इज दिस। अच्छा, माइकैट में कैलकुलेटर भी होता है, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर मॉक्स आल्सो, यू कैन यूज कैलकुलेटर इन माइकैट। ठीक है, नाउ what is the area of quadrilateral? Now we know the area of quadrilateral, which is equal to 24 plus 8 root 21, that is equal to S into R। S क्या है, सेमी पेरीमीटर, which is perimeter by 2, so 10 plus 6 16, 16 16 32 by 2, that is 16, 16 R। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 plus 8 root 21 by 16, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 plus this is half, so root 21 upon 2। रूट 21 निकाल लेते हैं, रूट 21 अगर आपको वैसे अगर नहीं भी पता है, वैसे एग्जाम में शायद दिया हुआ था, आप कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हो। सो दैट विल बी सी 40 46 का स्क्वायर होता है 2116, 4.6 का 21.16 होता है, राइट? रूट 21 विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.6, एक्चुअली एग्जाम में गिवन था 4.58। ठीक है, एग्जाम में गिवन दिया था रूट 21 इज इक्वल टू 4.58, ये एग्जाम में गिवन था, सो आई फॉरगॉट टू राइट दिस, बट रूट 21 की वैल्यू दी थी, दैट आई रिमेंबर। ठीक है, तो रूट दिस विल बी 4.6, लेट अस टेक, तो अगर हम लेंगे 1.5 प्लस 4.6 by 2 is 2.3, that is 3.8, right? So closest option that matches is 3.79 centimeter। तो ये रूट 21 2.58 लेंगे, तो यहाँ पे 2.29 आ जाएगा और 3.79 आ जाएगा। तो अगर नहीं भी दिया होता तो you could have approximated like this। Anyway, calculator is available in MyCat now, so you should use it in such questions। So the answer is 3.79। So you must have learnt a new concept। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों को नहीं पता होगा ज्योमेट्री में। ठीक है, मुझे उस समय क्लिक नहीं हुआ था, ठीक है, और आई सॉल्व्ड इट लेटर since I had noted this question। Okay, there were some questions on probability, easy one। What is the probability that out of the first 25 natural numbers, a number is a multiple of 3 or 5? ठीक है,
3 या 5 का मल्टीपल निकालना है। नाउ 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9 and so on till 24. So there are 8 multiples of 3. 5 के कितने मल्टीपल हो गए, 5, 10 and so on 10, 25. 5 multiples. However, 15 is present in both. 15 इसमें भी आ गया, तो 15 इसमें भी आ गया, तो वो कॉमन आप रिमूव कर लोगे, ठीक है। 15 is common, so we will have a total of 12 such numbers. 12 by 25 is the probability. Right, so this was a simple question on probability. So this time there were some doable questions also. Last year MyCat used to be very difficult. मतलब उसमें last year the top score in MyCat in quant was 9. Imagine 9 marks. तो वो भी उसका होगा जिसने quant को बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा, 5-6 क्वेश्चन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था. But this year it was a bit doable. There were some straightforward questions like this one. ये भी आपको easy to moderate लगेगा. Time and work का question है. It says Vishnu, Rajat and Amit can individually complete a piece of work in 9 days, 18 days and 36 days respectively. All three start working on the task. Rajat works every day. Vishnu works only on odd number days and Amit works on even number days. In how many days will the work be completed? ठीक है, मतलब बहुत easy भी नहीं है, moderate level कह सकते हैं. So first of all, let us say the total work is equal to 36 units. LCM of these numbers. ठीक है, तो efficiency की बात करेंगे तो R की we have 3 people. विष्णु की efficiency हो जाएगी 4, R की efficiency हो जाएगी 2 and Amit efficiency will be 1. Now Rajat works every day. तो फर्स्ट डे क्या होगा, डे 1 में क्या होगा, रजत विल वर्क विद विष्णु वर्क्स ऑन ऑड नंबर डेज. फिर जो इवन डे होगा उसमें रजत के साथ काम करेगा अमित, ठीक है. फिर ये साइकिल रिपीट होगी. Rajat is doing 2 units, Vishnu is doing 4, so 6 units is done, right? And then Rajat is doing 2 and 1, that is 3 units. So 2 दिन में 9 units हो गए, ठीक है, that is one cycle. So if you make 4 cycles, that will in 8 days you will be able to do 36. So the work will be done in 8 days. So standard time and work question है, moderate level का, you could have done it easily in the exam. Okay. All right, let's see the next question. A trader loses 10% of his goods due to damage during transportation. Despite this loss, he wants to earn an overall profit of 20% on the entire lot of goods purchased. The selling price of 1200 items should be equal to the cost price of how many items. ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. कभी भी अगर आपको ऐसे दिया हो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम्स, और इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना हो, ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आइटम्स, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, तो क्या करना है, देखो जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स है ना, इसको मान लो सीपी, ठीक है. तो इन सच क्वेश्चंस, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होता है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया इनने. तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको आप सीपी रख लो एक्स और एसपी रख लो वाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो. अगर मान लो मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 items इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 items, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा. तो हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस रखना है 10, सेलिंग प्राइस रखना है 8, ठीक है. सो वी विल से दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है. तो ये हमें रखना है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम्स उसको कॉस्ट प्राइस रखना है, जितना सीपी दिया उसको सेलिंग प्राइस रख लेना है, ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को लेके प्लस ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे हमें काम करना है, ठीक है. Now the trader loses 10% of its goods due to damage and he wants to make an overall profit of 20%. Now the selling price of 1200 items should be equal to the cost price of how many items, ठीक है. अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 आइटम्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी आइटम्स, सो दैट मींस यहाँ पे ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया. तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1200 है, ठीक है. अब इसे क्या करना है, 20% प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट 20% बनाना है. तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस
1440 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है कि आफ्टर लॉस ऑफ 10%, मतलब 10% तो लॉस हो गया, तो ये आपका 90% ही बचा है, 90% आइटम्स ही बचा है, 90% का सेलिंग प्राइस 1440 है। तो एक्चुअल एसपी कितना होगा, लाइक एक्चुअल एसपी होना चाहिए आपका, दिस इज 90%, सो एक्चुअल एसपी विल बी 1600। तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बात किया, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आइटम्स होना चाहिए। सो सेलिंग प्राइस कौन सा होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम्स वाला। तो सेलिंग प्राइस सिंस इट इज 1600, दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1600 आइटम्स। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये कर लिया होगा स्टूडेंट्स ने। टिपिकली लोग जो पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस में ही इस वैरायटी का क्वेश्चन किया होता है, तो यू कुड हैव बीन एबल टू डू दिस इन द एग्जाम। ये इजी क्वेश्चन लगा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। द एरिया ऑफ अ rhombus is 756 centimeter square and one of its diagonal is 21 centimeter. The perimeter of the rhombus is equal to perimeter of a regular hexagon. What is the side length of the hexagon? ठीक है, तो हमें एक rhombus दिया। अच्छा, rhombus में एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, एक डायगोनल हमें दिया है, एरिया दिया है। सो व्हाट विल बी द सेकंड डायगोनल, d2 इज इक्वल टू 2a अपॉन d1, ये कह सकते हैं। So 2 into 756 by 21. So this becomes 3 times is 63, 12, 126, that is 72. ठीक है, अच्छा रोम्बस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रोम्बस के स्ट्रक्चर में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वाइड रोम्बस बनेगा गिवन द वैल्यूज, तो 21। ठीक है, अच्छा नाउ one of the diagonals is 21 and another is 72, तो ये 36 में कट हो जाएगा और ये 10.5 और 10.5 में कट हो जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, सो दिस विल गिव अस द साइड लेंथ ऑफ द रोम्बस, राइट। अब मैंने बहुत अच्छी वैल्यूज चूज की थी। ठीक है, अब कुछ होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स, अगर पाइथागोरियन ट्रिपल्स की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है तो एक तो है कि आप इसको स्क्वायर करके ऐड करके निकाल सकते हो, लाइक 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 एंड 10.5 स्क्वायर इज 110.25, so you will get 1406.25। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा हैवी पड़ेगा, राइट। यू विल गेट 37.5 एज द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो इनने बहुत अच्छा यूज किया, वो पाइथागोरियन ट्रिपल है। ठीक है, 10.5 रेशियो 36 ले लेते हैं, इसे कर लेते हैं 21 रेशियो 72, वही हमें डायगोनल दिख रहा था 2172। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे तो 724 बन रहा है। ठीक है, so that is how I used it in the examination, and if you know these Pythagorean triples it becomes easy to solve such questions। मतलब जो कैलकुलेशन बेस बहुत हैवी लग रहा था, since calculator was available in the examination you could have used this, but अगर आपको ये चीज आती है ना तो you are way better than most of the candidates। अब कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 4 5। डू वॉच अवर क्लासेस, आई टोल्ड यू कि सितंबर स्प्रिंट हमारी एक सीरीज थी, in that classes we have covered all these concepts, okay, how to solve such questions in a smart way, like think like a 99% error, how a 99% error is different from average students who use calculator and all for all the questions। ठीक है, और फिर होता है 5 12 13 8 15 17, ये तो एक गांठ बांध लो क्योंकि काफी क्वेश्चंस, काफी एग्जाम्स होते हैं जिसमें ज्योमेट्री काफी पूछी जाती है। माइकेट में ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, अलजेब्रा सब कुछ आती है, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नंबर से भी क्वेश्चन आता है। तो 7 24 25 एक रेशियो होता है, तो अगर हम 7 24 25 करें, दिस इज 1.5x, 25 into 1.5 विल बी इक्वल टू 37.5। तो ये अप्रोच पाइथागोरियन ट्रिपल्स वाली एक बेटर अप्रोच है देन एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, सपोजिटली इजी बट कैलकुलेशन इंटेंसिव। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी लगा क्योंकि मुझे पाइथागोरियन ट्रिपल्स पता है तो बहुत जल्दी हो गया था, जिसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसको टफ लगेगा। नाउ वी आर गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रोम्बस की चार साइड होती है,
तो पेरीमीटर विल बी 37.5 into 4 which is 150. ठीक है, अब ये क्या है कि हेक्सागन के पेरीमीटर के बराबर है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं एंड इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो 150 by 6 you will get the answer as 25 centimeter. It was a doable question provided you have understanding of rhombus and some Pythagorean triples. Okay, so it is very handy in Pythagorean triples are very handy in all these questions wherever right angle triangles are involved. Okay, now there was another question which said that series A is an arithmetic progression. The progression is 7, 14, 21 consisting of n terms and the sum of these terms is 2, 2, 7, 5. Series B consists of square of first m natural numbers and the average of the terms of this series is 38.5. Find the value of m plus n. ठीक है, पहली सीरीज देखते हैं जिसमें 7, 14, 21 and so on हमारे n terms हैं, okay? And sum is given to us. Now this is an arithmetic progression. What is sum of an AP? Sum of an AP is n by 2, 2a plus n minus 1 times of b. ठीक है, now it has n terms, n हमें निकालना है, so n by 2, 2a, a is 7, 14 plus d is 7, 7 times of n minus 1 which is equal to 2275. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 7n plus 7. ठीक है, 7n plus 7 अंदर बन गया और ये क्या बन गया n by 2. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, 7n minus 7 plus 14 is plus 7. नाउ इससे आप 7 भी बाहर निकाल सकते हो, तो वी कैन टेक आउट 7 एंड से 7n by 2 into n plus 1. अभी एक स्टेप में लिख दिया। ठीक है, पहले आपने क्या करा, 7n plus 7 बनाया, 7 भी कॉमन ले लिया, इज 2275. तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 times 3 is 21, then 1 7 2 and 5 325 और इसको n को इधर ले जाओ तो ये 2 times कर लोगे 650 बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे फिर n into n plus 1 is 650. Now a knowledge of numbers is needed over here. पहली चीज ये देखने वाली होती है कि मतलब इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक नंबर सोचते हैं, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर आएगा, अगर मैं 30s में सोच लूंगा, लाइक अगर मैं n को 30 ले लेता हूँ, लाइक आई टेल यू हाउ टू गेट द हिट एंड ट्रायल थिंग राइट। नॉलेज ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा है क्वांट के टीचर्स बोलते हैं अरिथमेटिक कर लो, अलजेब्रा कर लो, मैं कहता हूँ नंबर सिस्टम करो। अगर नंबर सिस्टम अच्छे से करोगे, नंबर्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी ना, ये सारी इक्वेशंस यूं चुटकी में सॉल्व होती हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सीधे देख के बता दूंगा कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, थोड़ा मैं बताता हूँ कि कोई मतलब बिगिनर है उसको समझ में नहीं आएगा कैसे निकाल दिया। पहले तो सोचो कि अगर मैं n20 रखता हूँ तो मेरे वैल्यू कितनी आती है, 420 आती है। ये नहीं भी करूंगा तो मुझे पता है 400 समथिंग आएगी। n30 रखता हूँ तो 900 समथिंग आ जाएगी, राइट। 32 एक्चुअल कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको एक्चुअल नहीं करना, आप बस देखो 20 और 20 के आसपास 400 समथिंग, 30 और 30 के आसपास 900 समथिंग, मतलब 20s में नंबर आएगा। तो ये चीज समझ में आ गई, 20s में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 650 है, 650 क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना लास्ट में, 5 का मल्टीपल है, तो कोई तो एक 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 20s में 5 का मल्टीपल क्या आता है, 25 आता है कि नहीं। अब या तो n25 होगा या फिर n plus 125 होगा, तो दो केस बचते हैं, मतलब इतने क्विक वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही नहीं, अगर यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं भी बन रहा होता, हम लास्ट डिजिट से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे 650 में, वो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ सो दैट लाइक यू आर एबल टू गेट दोज थिंग्स कि आपको ऐसे क्वेश्चन, सपोज अगर मान लो दे दो n plus 1 is equal to 11 2 2 दिया है। ठीक है, अभी इसको भी मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, n अगर मैं 24 रखता हूँ और इसे 25 रखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाय 25 इज वेरी सिंपल। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय 4 कर लो। ठीक है, इसकी जगह आप डिवाइड बाय 4 कर लो और इंटू 100 कर लो, तो ये 600 बन जाएगा। तो n24 तो फिट नहीं हो रहा। देखो मिनिमम मुझे बस दो ही चेक चेज करनी है कि 24 होगा कि 25 होगा।
बस। और विद प्रैक्टिस दीज थिंग्स कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो अगर आप let's say if you are CAT 2026 aspirant and wish to prepare with us, you can check out our course, right, to learn such techniques so that you are much better at solving questions, or calculation wise as well as logic wise. Now n gives us 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, n 25 हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें करना है, सॉल्व करना है m का। अब m कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज सेइंग दैट series B consists of squares of first m natural numbers and the average terms of this series is 38.5। अच्छा, दूसरी सीरीज क्या है, 1 + 4 + 9 प्लस एंड सो ऑन टिल m स्क्वायर। अच्छा, इसका सम पता होना चाहिए। इसका सम होता है m m+1 इंटू 2m+1 अपॉन 6। ठीक है, अच्छा अब हमें ये क्या एवरेज दिया है, दिस एवरेज इज गिवन एज 38.5। सम नहीं दिया है, एवरेज दिया है, तो सम ये होता है, एवरेज के लिए हम m से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें सीरीज सीक्वेंसेस की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नाउ वी आर गेटिंग m+1 इंटू 2m+1 और इसे मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 + 5 231 आ जाएगा। अब इसे वही देखो, इसको लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, करेंगे कि नहीं? क्योंकि आपको लोग यही सिखाते हैं, कोई भी क्वांट का टीचर होगा वो आपको ये बता रहा होगा कि इसको क्वाड्रेटिक बनाओ फिर ऐसे ऐसे करो। बहुत टाइम लग जाता है भाई, अगर आपको फटाफट सॉल्व करना है, अगर आपको बीट करना है लोगों को, तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, आपको नंबर से खेलना है। इसीलिए मैं इंस्टीट करता हूँ कि नंबर्स पढ़ो, नंबर्स पढ़ो, नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखो, उससे क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2m² करीब बन रहा है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व ही नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि 2m² बन रहा है प्लस समथिंग कुछ 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 ऐड करके बन रहा है 231। ठीक है, तो m² मेरा करीब 115 के आसपास बनेगा, कुछ ऐड भी हो रहा है। ठीक है, इसमें m की पार्ट्स भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि m² कितना आएगा, 100 के आसपास बनेगा। 100 के आसपास बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं क्या करूंगा, पहला शॉट लूंगा, m = 10 ले लेता हूँ। ठीक है, एंड सी इफ इट वर्क्स। क्योंकि मुझे पता है कि ये 231 है, 2m² प्लस समथिंग, तो m² 115 से कम ही होगा, क्लोज टू 100, और इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, देखो m² आप कहोगे कि 115 से कम है, तो 10 गेस कर लो, एक गेस वर्क करो। ये गेस वर्क करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस में, तो ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, एग्जाम में आप सटीक कर पाओगे। तो ऑल दीज क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी हमने अभी कुछ कुछ डिस्कस किए, पाइथागोरन ट्रिपल्स के, ये सब ये मैं इजीली इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि नंबर्स की बहुत अच्छी हैबिट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट पीपल विल नॉट टेल यू कि जिनको आप मानते हो कि हाँ यार ये क्वांट का बेस्ट टीचर है, वो बस आपको फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं। दैट इज मैथमेटिक्स, नॉट क्वांट। क्वांट इज अबाउट अप्लाइंग स्मार्ट टेक्निक्स, लॉजिक के साथ, नंबर्स के ट्रिक्स के साथ, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट, नॉट मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैंने 10 रख लिया, एक गेस मारा, 11 और 21, बिंगो, फिट हो गया। ठीक है, तो m की वैल्यू 10 आ गई। तो कंपैरेटिवली इसे मच बेटर वे में मैं सॉल्व कर पाया एज कंपेयर टू एन एवरेज एस्पिरेंट। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि एवरेज, मतलब लोग एवरेज कर रहे हैं, आप बेटर कैसे कर सकते हो? आप कहते हैं कि मैंने यार सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आपने बस कॉन्सेप्ट पढ़े, आप मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व करते हो, उससे आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। आप एक रेंज तक करोगे। ठीक है, आप कितनी पेन चला लोगे, ये दिमाग तेज चलाना सीखो। दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज मुझे n इंटू एन प्लस वन 11 दिया है, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसे विदाउट इवन फैक्टराइजिंग एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि n अगर मैं 30s में लूंगा तो 900 समथिंग आएगा, 30 लूंगा तो 900 समथिंग आएगा। ठीक है, अगर मैं 40 लूंगा तो 1600 प्लस आ जाएगा। ये भी हमने देखा था जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो मुझे पता है कि n 30s में कहीं पे आएगा। ठीक है, n हैज टू बी इन 30s। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा, सपोज 31 लूंगा, तो ये 32 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। बट 31 32 मल्टीप्लाई करके देख लो कि थोड़ा अगर स्क्वायर्स की प्रैक्टिस भी होगी तो बेटर कर लोगे। ठीक है, 31 इंटू 32 करोगे, 32 इंटू 3 960 और 992 आएगा, तो ये कम रह गया। 2 इंटू 3 करोगे, अब मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स मी 6 और लास्ट डिजिट 6 नहीं हो सकता। अब मैं 33 इंटू 34 देखूंगा, मुझे दिख रहा है बहुत
लाइक्लीहुड हो सकता है। कैसे? लास्ट डिजिट 2 फिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं 34 इंटू 35 लूंगा तो लास्ट डिजिट 0 होगा, तो ये फिट नहीं हो रहा, ठीक है। 35 इंटू 36 लूंगा, लास्ट डिजिट 0 है, वो फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, में नंबर से आगे निकल गया हूँ, तो मुझे पता है n की वैल्यू 33 आएगी, ठीक है। विद प्रैक्टिस, अभी आपको ये लग रहा होगा वाओ कितनी जल्दी कर लिया, पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। नंबर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर्स के स्क्वायर, ये सारी चीजें पता ही आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आएंगी तो आप मच बेटर वे में सॉल्व कर पाओगे। All right, let's see the next question. It was again a challenging question, मतलब थोड़ा अच्छा question था। It says 2 liters of a solution contains m% of acid and 3 liters of another solution contains n% of acid. When the two liquids are combined, the mixture contains 40% of acid. If m and n are integers such that m is greater than n, how many integer values of m are possible? ठीक है, ओके। यहाँ पे m% और n% है, ठीक है। तो 2 लीटर्स है, m/100 प्लस 3 लीटर्स है, n/100। नाउ वी आर गेटिंग लाइक 2 लीटर्स ऐड किया और 5 लीटर्स ऐड, 3 लीटर्स ऐड किया, टोटल 5 लीटर बन गया। इसमें 40% एसिड है, तो हमारा एसिड कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 2m/100, इसमें 3n/100, टोटल आ रहा है 5%, 5 लीटर का 40%, विच इज इक्वल टू 2 लीटर्स, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 200, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दिया है m इज ग्रेटर देन n, m and n आर इंटीजर्स, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, पहले कर लो एक इक्वलिटी, इक्वलिटी लाइक m इक्वल टू n कब होगा, m इक्वल टू n रख लेते हैं, तो m इक्वल टू n रख लेंगे, 5m इज इक्वल टू 200, तो इसमें एक वैल्यू आ जाएगी m और n की 40-40, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, बट वी विल नॉट कंसिडर द केस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे नेक्स्ट वे में, कभी भी ये लीनियर इक्वेशंस है, स्पेशल इक्वेशंस बोलते हैं इसे लोग, लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन है। इफ यू हैव एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट, ठीक है, तो अगर आप m में कुछ चेंज लाओगे तो m और n का चेंज, इसका ये मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, m चेंजेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ n and n changes by coefficient of m। अब जिसने कैट की प्रिपरेशन ढंग से की होगी उसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये तो पहली चीज है, ये ध्यान रखना, कभी भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो इस तरह से उसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। सेकंड थिंग इज लाइक इफ यू हैव बेसिकली अगर प्लस साइन है तो रिवर्स जाएंगे, ठीक है, और अगर माइनस साइन है तो सेम डायरेक्शंस में जाएंगे। रिवर्स जाएंगे की मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हमें बढ़ाना किसको है, हमें m को बढ़ाना है, बिकॉज m इज ग्रेटर देन n। अच्छा, m को बढ़ाना है, अब आप हर वैल्यू हिट एंड ट्रायल से नहीं करोगे, एक आपको बस एक बार हिट एंड ट्रायल करना है, फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। m चेंजेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ n, n का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो m की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 43, और m बढ़ाना है, ठीक है, हम m इंक्रीज कर रहे हैं तो n हमें डिक्रीज करना है, तो n में कितना डिक्रीज आना चाहिए, 2 का डिक्रीज आना चाहिए, दैट इज 38। करके देख लो, 43 into 2 is 86 and 38 into 3 is 11, टोटल 200 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 46 एंड 36, इसमें 3 का चेंज आ जाएगा और इसमें -2 का चेंज आ जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है। m में अगर हम माइनस भी करेंगे, 40 - 3 भी करेंगे तो n में +2 भी हो जाएगा, ठीक है, बट हमें वैल्यूज चाहिए m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो इसमें 46 into 2 is 92 and 36 into 3 is 108, तो टोटल 200 आ रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में भी जाओगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। m को अगर आप छोटा भी करोगे तो n बड़ा होता रहेगा, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, बट हमें ऐसे कर करके हम एक एक वैल्यू नहीं लिखेंगे, लास्ट n कहाँ पे आ जाएगा,
लास्ट एन आएगा, देखो दो दो से कम होते जा रहे हैं, 2 तक आएगा। ये जीरो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि उसमें कुछ है, 3 लीटर्स इज प्रेजेंट, तो जीरो तो हो नहीं सकता, राइट? उसमें कुछ तो होना ही है। So we have from 2 till 38. So 2 4 6 8 ऐसे करके कितने टर्म्स हो गए? 19 टर्म्स हो गए। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट, उस 2 into 19 is 38। इस तरह से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। इफ समवन इज कॉन्सेप्चुअली साउंड शुड हैव बीन एबल टू डू इट। ओके, नाउ दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टीटा में आया था, टफ क्वेश्चन था। An arithmetic progression has 19 terms and a geometric progression has 6 terms. The last term of the AP is 38. The third term of the AP is equal to the first term of the GP. The sum of the AP is 2 more than the sum of the GP. If the common ratio of the GP is 2, find the last term of the GP. अब मैंने इसे कैसे किया? मैंने एक हिट एंड ट्रायल वाला लॉजिक अपनाया, ठीक है? अच्छा, AP में क्या है? A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल A19 तक हमारे टर्म्स हैं और लास्ट टर्म हमें दिया है 38, ठीक है? और ये जो है ये G1 के बराबर है, ठीक है? फिर क्या है कि G2 G3 और इसमें 6 टर्म्स है। मैंने इसे कैसे किया एग्जाम में? मैंने क्या दिमाग लगाया कि इंटीजर वैल्यू है, टीटा हमेशा याद रखना, कैट में भी यही होता है कि टीटा हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि ये एपीजीपी है, इसमें सारे टर्म्स इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने एक गेस लिया। तो व्हाट गेस आई टुक वाज, आई सेड कि ये 38 है, या तो कॉमन डिफरेंस 1 रख लो या 2 रख लो, ठीक है? तो मैंने क्या करा कि 2 रखा, ठीक है? अगर मैं 1 रखूंगा, अगर मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा आपका 20 21 22 ऐसे करके बनेगा, ठीक है? अगर मैं 1 कॉमन डिफरेंस रखूंगा, इस केस में क्या होगा कि जो ये 22 बनेगा, 44 बनेगा, 60 सॉरी 88 बनेगा, और क्या दिया है कि थर्ड टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एपी इज 2 मोर देन द सम ऑफ जीपी, पर जीपी का सम बहुत बड़ा आ जाएगा, देखो 176 352 70, और इसका सम बहुत कम रह जाएगा कंपेयर टू दिस, ठीक है? तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक द कॉमन डिफरेंस एज 2। तो मेरा ये टर्म आ रहा था 2 4 6 8 ऐसे करके मेरा टर्म बना, ठीक है? 38 ये गिवन है। तो मेरा जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया 6 12, और मैंने आंसर के लिए, आंसर वेरीफाई करने के लिए इनको, इनका सम निकाल के देख लिया, ठीक है? आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो अब आंसर, अगर इसका सम दिया, इसका सम कितना हो जाएगा? n/2 a plus n, n is 18, 19/2, 38 plus 2 40/2, that is 20 into 19 380, इसका सम 380 है, इसका कर लो 240 360 378। ये कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आवर गेस वाज करेक्ट। तो हमारी गेस करेक्ट है, लास्ट टर्म ऑफ द जीपी होगा 192। ये टीटा क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब इसे कन्वेंशनल वे में कैसे सॉल्व करना चाहिए? ठीक है, वैसे तो क्यों सीखना कन्वेंशनल वे, जब ऐसे स्मार्ट वे से आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्स में। कन्वेंशनल वेज का तरीका क्या होना चाहिए था? लेट अस से अगर ऐसे गैस नहीं बन पा रहा था तो वो भी बता देता हूँ। तो A1 को हम मान लेते हैं ए, मतलब जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके हम सीरीज ले लेंगे, ठीक है? तो लास्ट में हो जाएगा ए प्लस 18, इसका आप सम निकाल दोगे ठीक है, n/2 a प्लस एल करके। ये हमें दिया है जीपी का, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये एपी है हमारा और जीपी है। जीपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2, और कॉमन रेशियो कितना दिया है? 2 दिया है। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2a प्लस 4, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4a प्लस 8, फिर 8a प्लस 16, फिर आ जाएगा आपका 16a प्लस 32, ऐसे करके आपके 5 टर्म्स 6 टर्म्स का जीपी निकल आएगा। फिर आप क्या करोगे? एक इक्वेशन बनेगी आपकी इसके सम की, ठीक है? इसका जो सम होगा विच विल बी 19/2 2a प्लस n minus 1 d, okay, 2a plus n is 19 so 18d, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है? और ये इसका सम निकल के आएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 ये निकल के आएगा, ठीक है? फिर आप इन इक्वेशंस में इसमें दो ऐड करोगे तो ये बनेगा, राइट?
और फिर उसके लास्ट टर्म आपको दिया है 38, तो एक इक्वेशन ये भी बनेगी a प्लस 18d इज इक्वल टू 38, ये भी एक इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है, इन सबका सम प्लस 2 विल बी दिस। तो बहुत टीडियस टास्क बन जाएगा, उससे बेटर थिंक लाइक दिस कि इंटीजर वैल्यूज लेके चलते हैं और आंसर आ जाए। नाउ दिस थिंग मेनी स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज कि नंबर्स यूजुअली इंटीजर वैल्यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को रियलाइजेशन होता है राउंड ऑफ नंबर्स इंटीजर वैल्यूज का, जिसको होता है वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेता है। Okay, so these were questions from this year's MyCat, which I attempted, right? Or I think एक आध कोई और question भी I will just check मतलब उसका and these are some questions from last year, ठीक है, जो 2024 और 25 वाला जो MyCat हुआ था उसका question है। A 192-liter solution contains milk and water in the ratio 3:1. A certain quantity of this solution is removed and 80 liters of another mixture containing milk and water in the ratio 3:2 is added to it. If the final mixture contains 30% water, find the quantity of liquid that was initially taken out. ठीक है, तो मिल्क है और वाटर है। पहले क्या 192 में 3:1 है, तो 4 से डिवाइड कर लो, दैट इज इक्वल टू 48। तो वाटर हो गया 48 और ये बचा 144, ठीक है। इससे कुछ टेकन आउट हो गया। अब इसको हम जो टेकन आउट है उसको 4x ले लो। वाई? बिकॉज हमें रेशियो दिया 3:1। तो ये 192 लीटर था, इससे हमने 4x रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जो 4x रिमूव किया इसमें से 3x रिमूव हो जाएगा, इससे x रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये बच गया। अब इसमें जो हमने 80 लीटर डाला, in this 80 liter milk and water is in the ratio 3:2, okay? तो इसमें जो जाएगा that will be 3:2, that is 48 and 32, that you need to keep in mind कि ठीक है। अच्छा, अब ये कितना बचा? Our final volume will be 192 minus 3x and this is 80 minus x। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये बचा 192 माइनस 3x और ये 80 माइनस x, और क्या किया है, वाटर इज 30%, ये 30% है। तो आपको ऐसे लिख सकते हो 7:3 बन गया। 7:3 सॉल्व कर लो, इसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो 576 माइनस 9x इज इक्वल टू 560 माइनस 7, सो आपका 2x आ जाएगा। 2x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 8, ठीक है। अब ऑब्वियसली 8 ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि इनिशियली टेकन आउट हमने 4x लिया था, द आंसर इज 32 लीटर्स। तो ये एलिगेशन का टिपिकल क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन, जिसमें रिमूव करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो दिस शुड हैव बीन एबल टू, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। Okay, here's the next question. It says B takes 4 hours less than A and 3 1 by 5 hours. 1 by 5 we can write 3.2 hours more than C to complete a certain piece of work. A and B together can complete the work in the same time that C alone takes to finish it. In how many hours can A and B complete the can B alone complete the work? ठीक है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, लाइक A B और C है, ठीक है। बी टेक्स 4 आवर्स लेस देन ए, सो सपोज बी एक्स आवर्स लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बी के बारे में बताना है। तो ए कितने आवर्स लेगा, ए लेगा एक्स प्लस 4 एंड सी, ए बी टेक्स 3.2 आवर्स मोर देन सी, तो सी लेगा 3x माइनस 3 अब यहाँ पे हमें जब नंबर ऑफ आवर्स गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कर लेते हैं, basically we do it using your लाइक एलसीएम मेथड, ठीक है। बट यहाँ पे हमें नहीं गिवन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इसे एक दूसरे वे में हम इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं, दैट इज एक और तरीका होता है, अगर आपको दिया हुआ है कि लेट अस से, वो मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, व्हिच इज बेसिकली लाइक इफ अ पर्सन टेक्स, लेट अस से, if
देयर आर टू पीपल, लेट अस से एक्स एंड वाई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। और मैं और अलग अलग वेज बताता हूँ इसे सॉल्व करने के, 3 वेज में करेंगे, ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो स्मार्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। पहला वे है जो आप टिपिकल फ्रैक्शन वे में करोगे, इट इज गिवन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम दैट सी अलोन टेक्स टू फिनिश इट, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेडिशनल वे में क्या करते हो, आप करते हो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c, ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/x+4 प्लस 1/x, और दैट इक्वल टू 1/x-3.2। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा x+4 अपॉन x टाइम्स ऑफ x+4 इज इक्वल टू 1/x-3.2। फिर ये बन जाएगा x इंटू x+4 इज इक्वल टू x-3.2 इंटू 2x+4। और फिर तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, आप कहते हो कि नहीं करना, ठीक है। तो दैट इज वन अप्रोच विच डज नॉट फील गुड, लाइक स्कूल की बात होती है तो आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। अब एक सेकंड अप्रोच देखते हैं, ठीक है, वो जो हम ये वाली बात कर रहे थे कि अगर हमें ऐसा दिया होता है, ये टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अगर x पर्सन p प्लस p टाइम में कंप्लीट करता है टास्क, ठीक है, y पर्सन p प्लस q टाइम में कंप्लीट करता है, और x एंड y टुगेदर t टाइम में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। तो द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू √p/q, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। जिनने इन डेप्थ अच्छी जगह से पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाया जाए। नाउ वी विल सी दिस थिंग कि ए और बी मिलके सी के बराबर टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x को, यहाँ पे x -3.2 ले रहे हैं तो इसको y ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा वेरिएबल लेते हैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। दिस विल बी y+3.2 और ये हो जाएगा y+7.2, ठीक है, y y+3.2 y+7/2, राइट। अब यहाँ पे देखो कि यही चीज हो रही है कि फर्स्ट पर्सन है वो y+7/2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, सेकंड पर्सन है y+3.2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, थर्ड पर्सन को भूल जाओ, यहाँ पे ए और बी मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, एक अप्रोच ये भी है, बहुत अच्छी अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू √pq, यानी कि y इज इक्वल टू √3.2 इंटू 7.2, ठीक है। तो एक बारी को ऐसा कर लेते हैं, 32 इंटू 72 कर लेते हैं, फिर उससे एक डेसिमल निकाल लेंगे, 32 इंटू 72 कर लेते हैं, तो 32 हमारा हो जाता है 16 इंटू 2, और अगर हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 2, तो ये 4 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, और ये 6 बाहर आ गया, हमारा कितना आ गया 48। तो यानी कि y आ गया हमारा 4.8, y 4.8 आ गया, तो b विल टेक 8 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा सॉल्व हो जाएगा। ये अप्रोच काफी बेटर है देन प्रीवियस टू। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर दो लोग काम कर रहे हैं, रिमेंबर इट अप्लाइज ओनली व्हेन टू पीपल आर वर्किंग, और आपको एक पर्सन का टाइम दिया, दूसरे का टाइम दिया, और टुगेदर वाला टाइम दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। दैट वाज वन अप्रोच। नाउ वी विल सी द थर्ड अप्रोच which I used, which is सदाबहार अप्रोच, ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस मैंने क्या किया, 7.2 लिया, ये आ जाएगा, सॉरी 11.2, 7.2, एंड द थर्ड पर्सन शुड टेक 4, फिर वो एलसीएम कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कभी आप ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो तो गो विद अ सेंट्रल ऑप्शन फर्स्ट, मतलब 8 या 9 लेके करो, ठीक है। अगर वो ज्यादा आ रहा है, मतलब सो दैट यू कैन बैलेंस अकॉर्डिंगली, द आंसर इज कमिंग लेस और मोर, ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन एडजस्ट इट। तो इसमें नहीं बनेगा, इफ यू टेक 8 एंड 12 यू विल गेट 4.8, और अगर भाई अगेन नंबर्स के साथ थोड़ी फेमिलैरिटी है तो आप
इसे इजीली हिट कर पाओगे विदाउट इवन, मैं बेसिकली ऑप्शंस ओनली, बट इजी टू फिगर आउट कि 8 एंड 12 से 4.8 में कंबाइंड वर्क होगा। तो 3 अप्रोचेस, दिस वाज द वर्स्ट अप्रोच इफ यू यूज। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह से पूछ रहे होते हैं, तो वो आपको ये अप्रोच बता रहे होते हैं। Okay? So try to learn from some seasoned mentors or those who can guide you in the right manner. Okay, now here's the next question, which was from geometry last year. PQR is a right angle triangle in which PQ is equal to 12 and QR is equal to 16. Okay, so PQ is 12 and QR is 16. Now we are given that a quarter circle with center at Q is drawn. ठीक है, तो एक क्वार्टर सर्कल यहाँ से बना दिया हमने। Okay, and it cuts PQ and QR at points E and F respectively, and touches PR at point D। यहाँ पे D पे टच करेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है PE रेशियो FR। अब ये अच्छा क्वेश्चन अगेन, लाइक एज आई सेड कि पाइथागोरन ट्रिपल्स ज्योमेट्री काफी अच्छे से भर भर के पूछी जाती है, तो प्रिपेयर ज्योमेट्री वेल। और नाउ पाइथागोरन ट्रिपल सीधे सीधे ये 20 हो गया। अब ये यहाँ पे इसका टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा सर्कल से। नाउ व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, तो वो रेडियस कैसे निकालेंगे? सी दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले तो हाफ 12 इंटू 16 होगा। ठीक है, और दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हाफ ऑफ क्यू डी इंटू पी आर। कैसे? ये आप इमेजिन करो, ये बेस ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ये बेस है और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो ये बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। हाफ दिस इज क्यू डी इंटू 20, तो इससे आपकी क्यू डी की लेंथ आ गई, तो यू विल गेट 192। क्यू डी विल बी इक्वल टू 9.6। ठीक है, क्यू डी 9.6 आ गई, राइट। अगर ये 9.6 आ गई तो यहाँ से यहाँ तक 9.6 है, टोटल 16 था, तो एफ आर विल बी 6.4। यहाँ से यहाँ तक 9.6 है, तो दिस विल बी 2.4। तो पीई रेशियो एफ आर पूछा है, 2.4 रेशियो 6.4। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर लोगे, 3 रेशियो। So that was the answer to this question. A mother and her daughter are standing on the same straight line near a vertical pole. The heights of the daughter, the mother, and the pole taken in that order are in a geometric progression, and their sum is 3.6.3 meters. Okay, so यहाँ पे एक पोल है, इसके यहाँ पे मदर खड़ी है, फिर डॉटर खड़ी है, और like their heights is the shadows of the pole, the mother and the daughter all fall at the same point on the ground. Okay, मैं कुछ चीज इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है मुझे। I think height of mother was also given in this. While typing the question, I made a mistake. Okay. Here, one thing more was given, that mother's height is 1.8. 1.8 मीटर यहाँ पे मदर की हाइट दी, तो ये पोल हो गया, ये मदर हो गई, ये डॉटर हो गया। Okay. So one more thing that was given was कि mother's height is 1.8 meter and now they are along the same line और shadow same जगह बन रही है। ठीक है, now pole is now mother is 1.8, total combined height is 6.3। अगेन इसे हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। ये हमें क्या दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, तो एक एजुकेटेड गेस लेके आप इसमें 2 अगर कॉमन रेशियो ले लो तो इट फिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में रादर देन मेकिंग इक्वेशंस, ठीक है, rather than making equations use integer values to solve it। जैसे हमने वाला क्वेश्चन भी देखा ना एपीजीपी का, जो इस बार आया था, जिसमें सम ऑफ एपी वाज 2 मोर देन जीपी, तो हमने कहा कि उसको अगर आप फॉर्मूले बना के करोगे तो बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव बनेगा, इसमें आपको लॉजिक लगाना चाहिए। ठीक है, नाउ वन थिंग इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मदर इज 1.5 मीटर्स। तो आपको बताना था मदर और डॉटर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आप सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सो दिस इज लाइक हाफ, राइट।
So let us say uh, like this is 3.6. Okay, and like shadows will be proportional to their heights only. तो जो पोल की शेडो लेट से लाइक शेडो अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल बनेगी. सो डॉटर की शेडो बनेगी 0.9x. ठीक है. देन मदर की शेडो बनेगी 1.8x. और जो पोल की शेडो है दैट विल बी 3.6x. द शेडो विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट. तो डॉटर की शेडो 0.9x बनेगी, मदर की 1.8x बनेगी, पोल की 3.6x बनेगी. तो यहाँ से यहाँ तक 3.6x हो गया. ठीक है, ये 0.9x हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1.8x हो गया. तो ये टोटल 1.8x है, ये 1.8x है, यहाँ से यहाँ तक 0.9 है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.9x और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1.8. तो 1.8x the difference is 1.5. So 0.9x the difference is going to be 0.75 meters or 75 centimeters. So that was a question based on heights and distances, basically similar triangles के concept पे question था. So this is how one should have approached. So remember that MyCat asks a lot of geometry questions, a lot of questions on modern math as well. ठीक है, permutation, combination, probability इन सब के भी question पूछता है. Algebra, arithmetic सभी कुछ पूछता है, numbers वगैरह सारे के सभी topics से questions आते हैं. So to like अगर आपको quant अच्छी है तो you can do well on that. इस year थोड़ा सा level dip हो गया. लास्ट ईयर तक काफी बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होते, बहुत गंदे गंदे भी होते थे. ठीक है, सो आई विल कम अप विद मोर सच क्वेश्चंस इन द कमिंग सेशंस सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे और अब कैसे आ रहे हैं. सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज एबल टू सॉल्व इट, राइट. कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि भाई आप कर ही नहीं सकते बिकॉज like as I said last year the highest score in quant was 9. ठीक है, और इस बार 18 point something है. उससे पहले भी quant में 10 11 there was once an instance I think in 2024 or so, 24 or 23 I had the highest score which was somewhere 9.75. ठीक है, तो वहाँ 10 मार्क्स हाईएस्ट, वो भी जो बहुत कुछ अटेम्प्ट करके आ रहा है वहां तक पहुंच पा रहा है. But this time around I think 18.75 was the highest. So it means किसी ने 20 attempt किए, 19 सही और एक गलत किया. Even I got around 13-14 marks in quant. I attempted the entire paper. ठीक है, there are some people who go and attempt only one particular section. कुछ institute के teachers होते हैं वो particular section करने जाते हैं. I attempt all sections and I was the top scorer in MyCat this time. Okay, so this time the level has dipped and we updated our mocks on that. ठीक है, लास्ट ईयर तक 8 ऑप्शंस वाले होते थे, तो हमने we removed 8 options. All have 4 options including we have introduced this 4 options. Then theta have been introduced or similar questions like जो आपके GK में आते हैं जिस तरह के branding and all, right. So we have 6 full length mocks. There is one free mock also. So even if you do not purchase our mocks you can test our free mock to understand कि MyCat किस तरह का आता है, किस तरह का लेवल रहता है. There are some other institutes also offering and we have got a feedback that some questions are highly irrelevant as well. So you can check our mocks for relevance at least. And we are having descriptive practice on our WhatsApp community. Daily हम यहाँ पे task देते हैं, so you can join our community for such questions. Okay, so this was the first video on this series. We will be coming up with more videos so that you have a good revision practice for MyCat. So thanks for watching this video and don't forget to like this video.